শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আমরা আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 158 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 10.158 onwards. Yes, संगिनी श्यामप्रिया माता जी। ओके। তার স্থানে রূপ গোসাই শুনেন ভাগবত, তার স্থানে রূপ গোসাই শুনেন ভাগবত, প্রভুর কৃপায় দেহ কৃষ্ণ প্রেমে মত। তার স্থানে রূপ গোসাই শুনেন ভাগবত, তার স্থানে রূপ গোসাই শুনেন ভাগবত, প্রভুর কৃপায় দেহ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত। প্রভুর কৃপায় দেহ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত। তিনি যখন শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গী ছিলেন তখন তিনি ভাগবত পাঠ করে তাকে শোনাতেন। এভাবে ভাগবত পাঠ করার ফলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি নিরন্তর কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত থাকতেন। তাই শরৎ গোস্বামীর অন্তর্গত রঘুনাথ ভট্টাচার্য বা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন তপন মিশ্রের পুত্র। আনুমানিক 1425 শতাব্দে তার জন্ম হয়। महाप्रभु कब जन्म हुआ था? दोनों डेट कौन बता पाएगा? दोनों साल, बंगाब्द और शकाब्द? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। बंगाली में प्रभु जी 1407 में और इंग्लिश में 1486, 86। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अब प्रभुपाद जी का इंग्लिश में सरोज माता जी बताइए। 1896 में होता प्रभुपाद का बॉर्न। हरि बोल, एक्सेलेंट। यस। ভাগবত শাস্ত্রে তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। অন্তলীলার 13 পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে রন্ধনেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। और कल हम लोग ने देखा कौन कौन प्रभु को कुकिंग आता है, वो भी देख लिया हम लोग ने सीक्रेट। তিনি যা রান্না করতেন তা অমৃতের মতো সুস্বাদু হতো। হরি বল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম তৃপ্তি সহকারে তা ভোজন করতেন। আর রঘুনাথ ভট্টাচার্য ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবন করতেন। रघुनाथ भट्टाचार्य 8 मास जगन्नाथ पुरी छिलेन। मेरे को तो इनसे इंस्पिरेशन लेके हमको भी कुकिंग सीखने की इच्छा कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्टকে বিবাহ করাতে নিষেধ করেছিলেন এবং নিরন্তর শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে বলেছিলেন। তাই তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে থাকাকালীন তিনি শ্রী রূপ গোস্বামীকে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করে শোনাতেন। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन बात चले गए आगे। শ্রীল রূপ গোস্বামী 8 মাস জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে এটা তারপরে ওই শ্রীল রূপ গোস্বামীর আশ্রয়ে যেতে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বৃন্দাবনে শ্রীল রূপ গোস্বামীর কাছে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠে এত সুদক্ষ ছিলেন যে তিনি প্রতিটি শ্লোক 3-4 রকম বিভিন্ন রাগে আবৃত্তি করতে পারতেন। अरे वो ये तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग ट्यून में, लेकिन हमको आता नहीं है। लेकिन 3-4 अलग अलग ट्यून में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে ছিলেন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে 14 হাত দীর্ঘ জগন্নাথের প্রসাদে তুলসী মালা ও ছুটা পান দান করেন। ছুটা পান क्या होता है? এই যে খাওয়া, এটো মনে হয় মুখে চিবানো পান। अच्छा, वो चीज এটা হিন্দিতে ঝুটা বলে না, चबाया हुआ पान। अर्पित पान लिखा हुआ है। अर्पित पान, अच्छा वाह। भगवान चबाएंगे थोड़े ना, उनको तो भोग ही लगाया जाएगा ना। नहीं चबाता है, चबाता है। भगवान का इतना बड़ा मुंह है। 14 हाथ दीर्घ जगन्नाथের প্রসাদী তুলসী মালা। वाह। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी निर्देशे তার এক শিষ্য শ্রী গোবিন্দজি মন্দির তৈরি করেন। হরি বল। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী সেই গোবিন্দজির মন্দির গোবিন্দজির সমস্ত ভূষণ অলঙ্কার করিয়ে দেন। তিনি কখনো বৈষয়িক বিষয় নিয়ে
কথা বলতেন না। हरी बोल, कब ये सब हमारे में आएंगे। अरे प्रभु मंदिर में जो चढ़ा पान रहता है वो लोग तो फूल वाला में डाल देते हैं भगवान का। अब वहां से लेते हैं क्या? नहीं, मैं सिर्फ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सबसे, लेकिन फूल वाला में डाल देते हैं वो लोग। 24 ঘন্টা কৃষ্ণ কথা স্মরণ করতেন এবং কৃষ্ণ পূজা করতেন। তিনি কখনো বৈষ্ণবের নিন্দা শুনতেন না, এমনকি নিন্দা করার কারণ থাকলেও তিনি বলতেন যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তিনি তাদের দোষ দর্শন করবেন না। यस करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु यहाँ लिखा हुआ है कि वही बीटल नट्स का लिखा है कि यूज्ड टू ऑफर हिम बीटल नट्स offered to Jagannath deity, and a garland of tulsi said to be as long as 14 cubits. 14 cubits मतलब क्या हुआ? 14 How long? हाथ। How long? 14 हैंड लिखा हुआ है, हैंड। 14 hands. Oh, इसमें cubits लिखा है 14 hands long. Okay, okay. जगन्नाथ जी तो बहुत मोटा है और बहुत तो बड़ा है, तो लगेगा इतना ना। तो जगन्नाथ जी का बूढ़ी देखा आपने कितना बड़ा? जगन्नाथ जी का পরে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী রাধাকুণ্ডের এক ছোট্ট কুটিরে থাকতেন। আচ্ছা, গৌর গণেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী হচ্ছেন রাগ মঞ্জরি। सरोज माता जी क्विज में आ सकता है। वो हिंदी में दिया है 42 लंबी तुलसी की माला देकर आशीर्वाद दिया था। वो अलग अलग 40 तो हाथ को ही बोलते हैं। अच्छा, 42 हाथ को बोलते हैं। 42 नहीं, बलिष्ठ लिखा है, ता है बलिष्ठ मतलब हाथ, 14 हाथ का वही। এই মতো সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ, এই মতো সংখ্যাতীত চৈতন্য ভক্তগণ দ্বিমাত্র লিখি সম্যক না যায় কথন। দিংমাত্র লিখি সম্যক না যায় কথন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্ত অসংখ্য, আমি কেবল এইভাবেই দিগদর্শন করছি, সম্যক রূপে তাদের সকলের কথা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল, একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল, তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল। তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল। এক একটি শাখা থেকে শিষ্য উপশিষ্য রূপ কোটি কোটি উপশাখা বিস্তৃত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা ছিল যে তার এই সংকীর্তন আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হোক, তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় বহু শিষ্য গ্রহণ করার প্রবল প্রয়োজন রয়েছে। सब अपने आप को पूछिए तो 15 सेकंड, हम जो दाल में हैं हमारे से, क्योंकि महाप्रभु का इच्छा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हमारे से दाल निकला है क्या? उपशिष्य सब पूछिए अपने आप को, 15 सेकंड, ठीक है? और निकला तो कितना निकला सब पूछिए अपने आप को। पूछिए पूछिए, महाप्रभु का आदेश था, इच्छा भी था। তার এই সংকীর্তন আন্দোলন কেবল বাংলার কয়েকটি গ্রামে অথবা ভারতবর্ষে প্রসারিত হলেই হবে না, সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের সদস্যরা যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছেন, সেই জন্য কিছু কর্মবিমুখ তথাকথিত ভক্ত তাদের সমালোচনা করে এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে কৃষ্ণ ভক্তি যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ইচ্ছার কথা বারবার ব্যক্ত করে গেছেন। তাদের সেই ইচ্ছার প্রভাবে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে। যারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত তারা অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের এই ব্যাপক প্রচারের নিন্দা না করে বরং গর্ববোধ করবেন। आप में से कौन कौन गर्वबोध करता है कि हम लोग इस्कॉन में हैं?
हाथ उठाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফলে, সকল ভরিয়া আছে প্রেম ফুল ফলে, ভাষাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ প্রেম জলে, ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ প্রেম জলে। এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা, এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা, সহস্র বদনে যা দিতে না রে সীমা। সহস্র বদনে যারে দিতে না রে সীমা। সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ, সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ, সমগ্র বলিতে না রে সহস্র বদন। সমগ্র বলিতে না রে সহস্র বদন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারো আস, শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। এই বৃক্ষের প্রতিটি শাখা উপশাখা অসংখ্য প্রেমরূপ ফুল ও ফুলে ভরে আছে এবং কৃষ্ণ প্রেমের জলে তা ত্রিভুবন ভাসালো। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের এক একটি শাখার অনন্ত মহিমা সহস্র বদনেও তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। সহস্র বদন শেষ মানে অনন্ত শেষ পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করতে পারে না। শ্রীলরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্মে আমি প্রণতি নিবেদন করি, তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি চৈতন্য বৃক্ষের মূল স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার দশম পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। নমো বিষ্ণু পাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। एकादश परिच्छेद श्री नित्यानंद स्कंद शाखा श्रील प्रभुपाद की जय। दशम परिच्छेद যেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শাখা প্রশাখার বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি এই একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ প্রভু শাখা প্রশাখা বর্ণনা করা হয়েছে। ক্লিয়ার? प्रभु जी, बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर, ये श्लोक नंबर 160 में किस क्रिटिसिज्म की बात की गई है, समझ में नहीं आया। समझ में आएगा कैसे, लिखा नहीं जब 160 में लिखा है ना कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को people would criticize its propaganda work. What sort of criticism is this? समझ में नहीं आया मुझे। mentioned here, I'm asking you. Sorry? Is it mentioned here? Yeah, it is mentioned here. Is it mentioned here what kinds of criticism? Is it mentioned? नहीं, ये लिखा ना एक जगह, members of the so-called devotees criticize the members of the International Society for Krishna Consciousness for accepting sannyas and spreading the cult of Chaitanya, Lord Chaitanya, all the world. So, which श्लोक you are in? 160, श्लोक 160. For spreading sannyas लिखा हुआ है। हाँ, spreading sannyas। ये तात्पर्य আছে। Accepting sannyas, हाँ, परपत में है। And spreading the cult of Lord Chaitanya all over the world. সদস্যরা যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাণী প্রচার করছেন। Actually sannyas, you are right. Now I'm telling you what criticism are there. Sannyasi is never supposed to cross the ocean. That is one. Cross the ocean. Oh, I see. Sannyasi is never supposed to cross the ocean. But প্রচারের জন্য করেছেন। And second is sannyasi यवन मिलेच्छा, इन लोग को सन्यास नहीं बना सकते। बट यवन मिलेच्छा नहीं रहा ना, सब वैष्णव बन गए। हाँ। ओके, सो फॉरेनर्स को इन्वॉल्व करना, एक दो क्रिटिसिज्म में, एक तो क्रॉसिंग द सीज वाज नॉट रिगार्डेड करेक्ट। सेकेंडली ये जो फॉरेनर्स को जो इन्वॉल्व किए थे श्रील प्रभुपाद, उसको लेकर के शायद क्रिटिसिज्म होता था। यवन मिलेच्छा
यवन, ओके ओके, आई विल, थैंक यू, चंडन को भी संन्यास दिया, वो सब अलाउड नहीं था। ओके, ये 4 वर्णों के नीचे आता है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य शूद्र, हाँ, उसके नीचे ये 3 वर्ण आता है। वर्ण बोलना भी ठीक नहीं होगा। यवन, म्लेच्छ, चंडाल। यवन यानी फॉरेनर्स, सॉरी, हाँ, यवन माने समझ गया ना कौन, म्लेच्छा माने फॉरेनर्स, और चंडाल माने डॉग ईटर्स। या, ओके, याद रहेगा सबको? थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो पहला श्लोक कविराज गोस्वामी का खुद का श्लोक है, लेकिन ये संस्कृत में है। नित्यानंद पदाम्भोज नित्यानंद पदम भज लिंगान प्रेम मधुन्मयान भृंगान प्रेम मधुन्मदन नत्वाखिलन् तेषु मुख्य भक्ताखिलान्तेषु मुखालिखं लिख्यन्ते कतिचिन्मया। लिखन्ते कतिचिन्मया। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রী পাদপদ্মের মধুপানে উন্মত্ত ভ্রমর রূপী ভক্তদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে আমি তাদের মধ্যে মুখ্য কয়েকজন ভক্তদের কথা বর্ণনা করবার চেষ্টা করছি। জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, তাহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য। তাহার চরণাশ্রিত যেই সেই ধন্য। জয় জয় শ্রী অদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ, জয় জয় শ্রী অদ্বৈত জয় নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু সর্বভক্ত বৃন্দ। জয় জয় মহাপ্রভুর সর্বভক্ত বৃন্দ। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়। যিনি তার শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি ধন্য। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর হোক জয় হোক, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক, জয় হোক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের। তস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তস্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তৎপ্রেমামর সখিনা সৎপ্রেমামর সখিনা ঊর্ধ্বা স্কন্ধ্বা ধূতেন্দু ঊর্ধ্বস্কন্ধ বধূতেন্দো শাখা রূপাঙ্গনান্নুমা। শাখা রূপাঙ্গনানুমা। নিত্য ভগবত প্রেমে অবিনশ্বর বৃক্ষ হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, আর সেই বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্কন্ধ হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু। সেই সর্বোচ্চ স্কন্ধের সমস্ত শাখা প্রশাখাদেরকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শ্রী নিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর, শ্রী নিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর, তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর। তাহাতে জন্মিল শাখা প্রশাখা বিস্তর। মালাকারের ইচ্ছা জলে বাড়ে শাখাগণ, মালাকারের ইচ্ছা জলে বাড়ে শাখাগণ। প্রেম ফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন, প্রেম ফুল ফলে ভরি ছাইল ভুবন। অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন, অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন। আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন। আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য বৃক্ষের অত্যন্ত গুরুতর একটি স্কন্ধ। তার থেকে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। মালাকার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইচ্ছারূপ জলের দ্বারা এই সমস্ত শাখা প্রশাখাগুলি অন্তহীন ভাবে বর্ধিত হতে লাগলো এবং প্রেম যুক্ত ফলে তা ভুবন ছেয়ে ফেলল। এই শাখা প্রশাখা রূপ ভক্তদের সংখ্যা অগণিত ও অন্তহীন, কে তা গণনা করতে পারেন? তবু নিজেকে পবিত্র করার জন্য আমি তাদের মধ্যেকার মুখ্য কয়েকজন ভক্তের কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। তাৎপর্য: জড়জাগতিক লাভ, পূজা অথবা প্রতিষ্ঠার জন্য পারমার্থিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত নয়। ভগবত তত্ত্ববেত্তা কোন মহাজনের নির্দেশ অনুসারে অথবা তত্ত্বাবধান পারমার্থিক গ্রন্থ রচনা করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা
কোনো জড় উদ্দেশ্য নিয়ে তা রচিত হয় না। কেউ যদি মহাজনের তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক বিষয় গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে তিনি পবিত্র হন। সমস্ত কৃষ্ণ ভাবনা মনের কার্যকলাপ নিজেকে শোধন করার জন্য সম্পাদন করা উচিত। কোন রকম জাগতিক লাভের আশায় তা করা উচিত নয়। किधर यस बोली प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु साहब बोले प्रभु कि ये जो प्रचार के शाखाएं हुई थी तो ये तो किसी संस्था के या ये प्रमाणिक ये के माध्यम से नहीं थी, तो उस समय तो संस्था था नहीं। तो यही सोचा है कि वो तो उनकी शिक्षाएं और उनके जो ये मोशन थे वो प्रचार में थे। हाँ, गुड क्वेश्चन। वैसे चलते जाओ। वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा, वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा, श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा, श्री वीरभद्र गोसाई स्कंध महाशाखा, তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা, তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা। नित्यानंद प्रभुर पर तार सबचाইতে বড় শাখা হচ্ছেন শ্রী वीरभद्र गोसाई। ये कौन था इंद्रावती माता जी? वीरभद्र गोसाई। कौन था? वीरभद्र गोसाई जो इनके पुत्र थे नित्यानंद प्रभु के। हाँ, শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে বর্ণনা করেছেন শ্রী वीरभद्र गोसाई হচ্ছেন শ্রী नित्यानंद प्रभु एवं श्री जाह्नवीर शिष्य। याद रखिएगा, जाह्नवी माता का कोई पुत्र नहीं था। ये वीरभद्र गोसाई और जो 8 संतान 6 संतान का मृत्यु हुआ था, याद है वो अभिराम ठाकुर का लीला में, और गंगा देवी जो उनका कन्या था नित्यानंद प्रभु का, इन सभी का माँ है कौन? वसुधा। जानवा वसुधा माता दोनों बहन थे, दो बहन का साथ विवाह हुआ था नित्यानंद प्रभु का। जानवा माता का कोई संतान नहीं था। दोनों बहन थे, दोनों मतलब हाँ, दोनों ही सूर्य सेन सौरखेलेर कन्या। और वीरभद्र गोसाई का गुरु थे जानवा माता, ये भी याद रखिए। कौन थे प्रभु? जानवा माता। ओ, मौसी बोलिए या माँ बोलिए, जो भी, तो जानवा माता। গৌর গণেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার वीरभद्र गोसाई। ठीक है, याद है हम लोग का ड्रामा में भी एक लाइन आया था, कारण महाप्रभु स्वयं अवतार হয়েছেন वीरभद्र गोसाई रूपे, हरि बोल। याद है, ये ड्रामा में एक लाइन आया था। तो ये महाप्रभु वीरभद्र गोसाई रूपे तो माने क्षीरोदकशायी विष्णु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अवतार। তাই वीरभद्र गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु থেকে অভিন্ন। হরি বল। ক্লিয়ার? হুগলি জেলার ঝামাটপুর গ্রামে যদুনাথ আচার্য নামক শ্রী वीरभद्र গোসাইয়ের এক শিষ্য ছিলেন। তার কন্যা শ্রীমতী ও পালিত কন্যা নারায়ণীর সঙ্গে वीरभद्र প্রভুর বিবাহ হয়। এই কথা ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে ত্রয়োদশ তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র নামক वीरभद्र গোসাইয়ের 3 শিষ্য তার পুত্র বলে প্রসিদ্ধ লাভ করে। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খরদহে বাস করতেন। তিনি শুদ্ধ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং তার পদবী ছিল বটবাল। বটব্যাল। তার পরিবারের সদস্যরা খরদহের গোস্বামী নামে পরিচিত। জ্যেষ্ঠ গোপীজন বল্লভ বর্ধমান জেলার
মানকরের কাছে লতা গ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদারের নিকট গয়েশপুর গ্রামে বাস করতেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে এই তিনজন শিষ্যের গোত্র ও পদবী যেহেতু ভিন্ন এবং তারা বিভিন্ন স্থানে বাস করতেন, তাই তারা বীরভদ্র গোস্বামীর ঔরস জাত ছিলেন না। ঔরস জাত মানে আপনার পুত্র নেই, নিজের সন্তান, নিজের সন্তান। নিজের সন্তান, সেমিনাল চাইল্ড। প্রভুজি একটু ওই নারায়ণের কথা বলছে, এই নারায়ণ কি ওই যা? না না না, এটা এটা অনেক পরে, অনেক পরে। শ্রীবাস প্রভুর ইয়ে ছিলেন না নারায়ণ? হ্যাঁ, ভাতুষ ভাতুষ ভাইয়ের মেয়ে সেটা অনেক নেক্সট জেনারেশন হয়ে গেল না, সরি নেক্সট টু নেক্সট জেনারেশন হয়ে গেল, 2 জেনারেশন পর হয়ে গেল। রামচন্দ্রের 4 পুত্র, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধা মাধব, যার তৃতীয় তনয় যাদবেন্দ্র, তার পুত্র নন্দকিশোর, তার পুত্র निधि कृष्ण, तार पुत्र चैतन्य चांद। आहा, क्या क्या नाम रखते थे अपने बच्चे लोगों का। तार पुत्र कृष्ण मोहन, तार पुत्र जगन मोहन, तार पुत्र ब्रजनाथ এবং তার পুত্র শ্যামলাল গোস্বামী। এইভাবেই শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বীরভদ্র गोसाईर वंश तालिका प्रदर्शन करेছেন। आप में से किनका किनका पिता तब अपने पुत्र और कन्या का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखा? गूगल हाथ उठाइए। आपने तक बता रहे अशोक को क्या है सब भाइयों का नाम नहीं रखा, तो आप गूगल हाथ उठाए। सबका नाम बोलना पड़ेगा, ठीक है? सबका नाम भगवान का नाम होना चाहिए। आप बोलो दादू। गौरांग, गोविंद, गीता, गदाधर, श्रीवास। एक सेकंड, पिता का नाम पहले बताइए। पिता का नाम गुरुपद साहा। ओके। मातार नाम चंद्रावली। वाह। তারপর বড় ভাইয়ের নাম গৌরাঙ্গ, মেজদার নাম গোবিন্দ, দিদির নাম গীতা, আমার তার উপরে ভাইয়ের নাম গদাধর, আমার নাম শ্রীবাস। হরি বল। হ্যাঁ, গদাধর শ্রীবাস তো পঞ্চতত্ত্ব। হরি বল, হরি বল, হরি বল। तो माता जी। पिता का नाम सियोतार, माता का नाम राम देवी और बड़ा भाई का नाम अमरनाथ, एक बहन का नाम ललिता, एक बहन का नाम चंदा, एक बहन का नाम किरण। ऐसे क्या सबको नहीं हुआ और फिर आपका नाम भी तो नहीं हुआ? सूर्य हो गया आपका नाम। सूर्य, सविता तो सूर्य का नाम है ना, सूर्य का पर्यायवाची शब्द में देखिएगा, सविता सूर्य का नाम। का काम हो गया नाम, ठीक है? सबको सब भगवान का नाम होना चाहिए। यस, अशोक को बोले, अच्युत करना अशोक, आपका नाम नहीं है? अच्छा बोलिए। मेरे नहीं तो पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, जो मेरे पिताजी के जो भाई लोग थे उन लोग का बहन का लोग का नाम कुछ तरह का था। जैसे कि पहले नाम था माधव, उसके पहले राजकिशोर, राजगृह। मेरे पिताजी का नाम रामगृह, उसके बाद राम गोविंद। मेरी बुआ थी, उनका नाम जानकी था। उससे छोटी थी वो सुलक्षणा। ऐसे ऐसे नाम रखा। सुलक्षणा। यस, राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पापा 4 भाई थे, वो लोग चारों का नाम यही था, भगवान जी का ही नाम था। पहले दादी का नाम बताना पड़ेगा, दादाजी और दादी का। मेरे दादा का नाम तो भगवान का नहीं था, लाला प्रसाद था, और लेकिन दादी का नाम देवकी था। भगवान का ही है ना नाम? अच्छा, हाँ है। हाँ, तो देवकी देवी था मेरी दादी का नाम, और मेरे पापा लोग का नाम रघुवीर, बलराम, राधेश्याम, सीताराम। हरे कृष्ण प्रभु। और इधर मेरे प्रभु के साइड में भी सब मैक्सिमम सब लोग का भगवान का ही नाम है। तो हरे कृष्ण प्रभु। एक सेकंड, प्रभु गूगल हाथ उठाइए। अच्छा गोपी माता जी, ये सीरन भाई गौरांग प्रभु। मेरा ग्रैंडफादर जो थे उनका 4 भाई
सब भगवान का नाम था। मेरा जो ये उनका नाम था कंदर्प नारायण। एक सेकंड, ग्रैंडफादर का 4 भाई बोल रहे, तो पहले ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम और ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम बताइए। हाँ, बलराम थे, ग्रैंड ग्रैंडफादर। हाँ, बलराम। ग्रेट हाँ, ग्रैंड उनका जो 4 लड़के थे, तो कंदर्प नारायण, रामचंद्र, वैकुंठ, और एक जन का नाम अभी याद नहीं, वो भी भगवान का नाम थे। कंदर्प नारायण, वाह क्या नाम, वेरी गुड। अच्छा, यस, श्यामा प्रजा सुंदर प्रभु। ओके, ठीक है। मेरा ग्रैंड फादर, ग्रेट नहीं, पिताजी का ग्रैंडफादर का नाम था शिरीष चंद्र सिंह राय। शिरीष चंद्र भगवान कृष्ण का नाम है, और तरंगबाला सिंह राय राधा रानी का नाम है। उनका 2 ही पुत्र था, नारायण सिंह राय मेरा जेठ, और मेरा पिताजी मधुसूदन सिंह राय। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा दादा का नाम रघुनंदन था, उनकी मेरी दादी का नाम सीता देवी था। उनके 4 पुत्र का नाम था सियोतार, रामनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ऐसे ऐसे नाम। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। बोले नहीं, बोलिए, जब बोलने को बोला था तब बोलते नहीं है। जब अरे नहीं मैं स्पीकर नहीं खोल रहा था प्रभु। अभी पूछ के मेरे दादाजी के दादा का नाम शालिग्राम साव, और उसके बाद भैरवदयाल हलवाई, फिर नारायण प्रसाद, फिर पुरुषोत्तम साव हमारे पिताजी का नाम, हमारे भैया का नाम सीताराम साव, मजली भैया का राधे श्याम साव, संगी भैया का घनश्याम साव, और मैं श्याम सिंह। पहले के लोग भगवान से संबंधित ही नाम रखते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे दादाजी का नाम अयोध्या साव, और मेरे बड़ा पापा रामकृष्ण, मेरे पापा बालकृष्ण, उसके बाद 3 चाचा बलदेव, बालेश्वर और जागेश्वर। हरी बोल, हरी 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 बोल। पहले के लोग में यही अच्छाई था, आजकल के वो सब नहीं रखते हैं। अच्छा, आपने क्या रखा है बच्चे लोग? मैंने अपने पोते का नाम रखा है माधव, नाम रखा है प्रभु। बच्चे का नाम नहीं बोल रहे, देखिए चालू है। सौरभ, एक ही तो बेटा, एक ही बेटी है बस। बोलिए रत्ना प्रभा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे दादाजी का नाम एक भोला, भरत, भगवान, परशुराम, और मेरे बड़े पापा का नाम है कन्हैया। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे दादाजी का नाम था शिव शंकर, और दादी का नाम था पार्वती, और बड़े ये कोइंसिडेंस था क्या? ये पता ही coincidence ही था। And they got married at the age of 9, and Dadi was 7 years old. Dadaji was 9 years old when they got married. That उस जमाने की बात कर रही हूँ। बच्चे थे वो लोग। हाँ, और then मेरे बड़े पापा का नाम था गणेश कौल उगरा गणेश। मेरे पापा का नाम था मोहन किशन। मेरी बड़ी बुआ का नाम शांता, छोटी बुआ का नाम जय किशोरी, और शांता भगवान रामचंद्र जी का बहन का नाम है ना? बहन शांता, सिस्टर। तो और एक चाचा जी का नाम ये था रूप कृष्ण। वो पता नहीं किसी, बाकी सब भगवानों के नाम के ऊपर ही उन दिनों ज्यादा होते थे। यस, निर्मला नंबरी माता जी। प्रभु जी, मेरे दादाजी का नाम घनश्याम दास जी, और दादी का नाम मथुरा देवी, एंड मेरे पापा का नाम बलभद्र, और मेरे चाचा जी का नाम राम कुमार जी, एंड ताऊ जी का ओम था, और मेरे नाना जी नानी जी का नाम तुलसीदास जी और गीता, एंड मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ का नाम है हरि एंड गौरा। वाह, हरि बोल। संगनी शांति तो मैं भी बोलूं? हाँ। प्रभु, मेरे परदादा का नाम जगदीश्वर था, मेरे दादाजी का नाम राम लखन था, मेरे बड़े पापा का नाम राम नारायण गुप्ता, मेरे पापा का नाम तेज नारायण गुप्ता, भाई का नाम सत्य प्रकाश, और बुआ लोग का नाम मोहनी, सुदामा और सुमित्रा है। राम दरबार। यस, महामंदिर माता जी। तो मेरे बाबा का नाम मोहनलाल, पिताजी तब उनके बेटे लोग हैं संत प्रसाद, शारदा प्रसाद, विश्वनाथ और पुरुषोत्तम, और मेरी बुआ का नाम है निर्मली,
और नाना जी गया प्रसाद, बद्री, उनके बेटे बद्री प्रसाद, जगन्नाथ, माँ का नाम जानकी बाई, ऐसा है। और आपका बेटा का नाम? मेरे पिता का नाम शारदा प्रसाद। आपका बेटा का नाम? मेरे बेटे का नाम साकेत। साकेत नाम, हरि बोल। वेरी नाइस। यस, नरेंद्र सरोवर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा दादा का नाम कांगा निधि और दादी का नाम था रंगा देवी, और मेरा बड़ा चाचा का नाम था बांक निधि, और मेरा पिताजी का नाम था पतिता पावन, और चाचा का नाम था केशव, और मेरा बड़ा भाई का नाम जगेंद्र, मेरा नाम था नरेंद्र। आपका नाम? नरेंद्र। नरेंद्र। और बेटा बेटी का नाम बोलिए। और बेटी का नाम है सुहानी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे दादाजी का नाम था अक्षयवर प्रसाद और दादी का नाम था यशोदा। अक्षयवर अक्षयवर प्रसाद और दादी का नाम था यशोदा देवी। पापा का नाम सीताराम अग्रहरी, मम्मी पार्वती देवी। और चाचा लोग का नाम है गणेश प्रसाद, रमेश प्रसाद, सुरेश प्रसाद, दिनेश प्रसाद, उमेश प्रसाद, जगदीश प्रसाद। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे दादाजी का नाम था भगवान दास और बड़े पापा का नाम था द्वारका प्रसाद, पापा का नाम मथुरा प्रसाद, मम्मी का नाम गीता। हरी बोल, हरी बोल। बच्चे लोगों का नाम बोल नहीं रहे, मैंने समझ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुषमा माता का सब मॉडर्न नेम हो गया। मैं लिखी हूँ, अपने बेटे का नाम आदित्य है और बेटी का नाम अदिति है, और छोटा बेटा का नाम उदित है। हरी हरी, वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू। प्रभु, आजकल के बच्चे के नाम फिल्म हीरो हीरोइन से संबंधित रखे जाते हैं। कितना जानकारी है इनको। नहीं, मेरा बेटा का नाम श्रेयस है। नहीं, मैं भी आदित्य ही रखी हूँ, मानिए सूर्य भगवान। तो बच्चों का भी नाम जो है, मेरे बच्चों का नाम जैसे स्निग्धा है और मयंक है, सब भगवान से रिलेटेड है। मयंक चंद्रमा का नाम है, भगवान का नहीं है। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंद। और वहीं पे जाता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद गौर भक्त वृंद এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত এখানে বলো হরি হরি।